Welcome to English Grammar class, dear students. So this is our preparatory video assignment number 4 for preparing you for Unit Test 1. So before I begin, I would like to take the pledge. I commit to vigilance and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially at public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear students, today we are going to revise Chapter 13, Story Writing. So, as you are aware that we can write a story based on 4 things: morals, outlines, incomplete hints, and pictures. So, today we are going to revise these stories. So, first we have, let us see how we can write a story based on a given outline. So the outline given here is Ram and Shyam were fighting. Both said the mango tree was theirs. Fist fight. People dragged them to court. Akbar puzzled. Birbal said divide the fruits of the trees between the two. Cut the tree in half. Give one half to each. Ram happy. Shyam cries out, agrees to give up the tree. Birbal says that his love for the tree proves that he is the owner. So this is a outline given here. So इस outline को देख के आपको एक story लिखनी है. So let us write the story. Ram and Shyam were in a fight. Both of them said they owned the same mango tree. They went up to Birbal and asked him to decide the matter once and for all. Who was the true owner of the mango tree? Birbal said, there is only one way to settle the matter. First, you must take all of the fruit of the tree. Each of you should take half the mangoes. Then, you must cut down the tree and divide the trunk in half. Each of you should take half the wood too. Then, everything will be fair. This is what I say. Ram thought it was all a good idea, and he said so. But Shyam said, Your Honor, I have tended that tree for 7 years. If you must, give the mango tree to Ram, but do not make us cut it down. What you have said told me all I need to know, said Birbal. Then he said that Shyam was the true owner of the mango tree. सो हमने ये स्टोरी इससे बनाई कि राम और श्याम दोनों लड़ रहे थे. वो बोल रहे थे कि ये मैंगो ट्री मेरा है. उसके बाद वो कहाँ पे गए? कोर्ट में गए, जहाँ पे बीरबल ने इस मसले को सुलझाया. उसने बोला कि दोनों उस ट्री को हाफ हाफ डिवाइड कर लो, दोनों उसको काट दो. उसमें से जो लकड़ी निकलेगी उसको भी डिवाइड कर लेना, और जो फ्रूट्स निकलेंगे उसको भी एक दूसरे के साथ बांट लेना. पर तभी क्या हुआ कि श्याम को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो ट्री को काट देंगे, क्योंकि श्याम ने बोला कि मैं इस ट्री को काफ़ी 7 ईयर से इस ट्री को पाल पोस के बड़ा कर रहा था, तो इसी वजह से उसने उसको काटने नहीं दिया. तो बीरबल ने बोला कि अब मुझे पता चल गया है कि असली ओनर कौन है, कि असली ओनर श्याम है, क्योंकि वो उस ट्री की केयर कर रहा था. सो सेकंड इज़ मॉरल. Let us now see how to write a story to bring out a moral. So moral is luck does not favor us always. Okay, so ये story आपको लिखनी है moral के ऊपर. Moral क्या है? Luck does not favor us always. So story is, a salt seller used to carry his salt bags on his donkey to market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, donkey suddenly tumbled down the stream, and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water, and the bag became light to carry. The donkey was happy. Thereafter, the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to teach the donkey a lesson. The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Again, it played the same trick, hoping the cotton bag would become lighter. But the wet cotton only became heavier to carry. The donkey suffered. It learned a lesson. It didn't play the trick anymore after the day, and the salt seller was happy.
सो दिस स्टोरी वॉज अबाउट अ सॉल्ट सेलर एंड हिज डोंकी। तो एक सॉल्ट सेलर अपने डोंकी के ऊपर सॉल्ट को लेके जाता था मार्केट में। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, तो नदी को पार करके उसको आगे जाना पड़ता था। तो डोंकी ने एक दिन नोटिस किया कि जब वो नदी में से गुजर के जाता है तो जो भी सॉल्ट होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो लोड है वो लाइट हो जाता है। तो डोंकी ने सोचा कि मैं रोज़ ही ये काम करूँगा। तो उसने रोज़ ही नदी से जब वो गुज़रता था तो बैग को भी नदी में डालना शुरू कर दिया, ताकि जो सॉल्ट है वो उसमें घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ताकि उसको ज़्यादा वज़न कैरी ना करना पड़े। तो उसकी जो ये ट्रिक वो रोज़ करने लगा, इसको सॉल्ट सेलर ने समझ लिया। तो सॉल्ट सेलर ने क्या किया कि एक दिन उसने सॉल्ट के बजाय कॉटन को उसके बैग्स में भर दिया, ताकि जब वो कॉटन को डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्ट समझ के स्ट्रीम में डाले, नदी में डाले, तो कॉटन पानी को ऑब्जॉर्ब कर ले और लाइट होने की बजाय जो वो वेट कैरी करता था वो और भी हैवी होने लगा, क्योंकि कॉटन डिज़ोल्व नहीं होती, वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस दिन डोंकी ने अपना लेसन सीख लिया। उसने क्या सीखा कि लक हमको हमेशा फेवर नहीं करता। सो उसके बाद जो सॉल्ट सेलर था वो खुश हो गया। सो थर्ड इज लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम अ स्टोरी फ्रॉम अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स। सो यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, देयर आर 3 पिक्चर्स। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, उसके ऊपर एक ट्री है, ट्री वॉलनट ट्री है, और यहाँ पे क्या है, पम्पकिन्स है ना। एंड यहाँ पे एक डोंकी भी है, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे दिन है। बाद में जेड 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 मतलब ये सो रहा है। उसके बाद क्या कि उसके सिर पे कुछ गिरा है ना आके, वॉलनट्स भी यहाँ पे पड़े हैं। तो अब क्या है, शाम हो गई है। सो इसके बेसिस पे आपको कोई भी स्टोरी लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही स्टोरी लिखनी है, आप कोई भी स्टोरी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके भी लिख सकते हो। सो लेट्स रीड द स्टोरी। नेफरेडिन होडजा। सो इस पर्सन को हमने एक नेम दे दिया है ना। नेफरेडिन होडजा वॉज रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ अ टॉल एंड lustrous walnut tree. As he sat daydreaming, he noticed huge pumpkins growing on slight vines on the ground. Then he looked up and squinted to see the tiny walnuts growing on the magnificent tree. How strange Mother Nature is, he thought, to make plump pumpkins grow on a delicate vines while little walnuts have grown on big and strong tree. Just then a walnut fell from above and landed with a top on Nephrodin's head. Hodja rubbed his sore head, picked up the fallen walnut, and looked high up towards the branches of the tree. Then he looked over thankfully at the swollen pumpkins growing safely on the ground, saying, "Oh, Mother Nature, you are wise." सो ये स्टोरी बन गई कि नेफ्रोडिन होडजा एक दिन एक वॉलनट ट्री जिसमें से सुगंधित वॉलनट्स की खुशबू आ रही थी, वहाँ पे बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे। और जब वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बात नोटिस की कि जो पम्पकिन्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, फिर भी वो एक पतली सी वाइन मतलब बेल के ऊपर नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं, अर्थ के ऊपर, है ना, कि पतली सी वाइन पे उगते हैं, वो भी अर्थ के ऊपर। बट जो ये वॉलनट्स है ये छोटे छोटे होते हैं, बट फिर भी ये एक बड़े से विशाल मैग्निफिसेंट ट्री के ऊपर उगते हैं। तो उसने बोला कि हाउ स्ट्रेंज मदर नेचर इज़, कि मदर नेचर कितनी स्ट्रेंज है कि बड़ी बड़ी चीज़ें पतली सी वाइन पे उग रही हैं और छोटी छोटी चीज़ें बड़े से पेड़ के ऊपर उग रही हैं। तो वो ये सोचते सोचते वहाँ पे उसी ट्री के नीचे सो गए। तभी क्या हुआ कि एक वॉलनट उनके सिर के ऊपर आके गिरा। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर उस छोटे से वॉलनट की जगह ये बड़ा सा पम्पकिन उस ट्री के ऊपर उग रहा होता तो उसके सिर पे अब जाके पम्पकिन पड़ता। तो वो थैंकफुल हो गया कि हाँ, अच्छा ही है कि जो मदर नेचर ने किया है, कि मदर नेचर यू आर वाइज, कि अच्छा है कि बड़े बड़े पम्पकिन ज़मीन पे ही उग रहे हैं ताकि इनसे किसी को चोट ना पहुँचे, और छोटे छोटे वॉलनट्स बड़े से ट्री पे उगे हुए हैं ताकि अगर ये किसी के ऊपर गिरे भी तो किसी को चोट ना लगे। So let's see the fourth one. Now let us see how we can write a story based on a given hint. So यहाँ पे एक हिंट गिवन होगा, मतलब स्टार्टिंग स्टोरी की आपको गिवन होगी, उसके बाद की स्टोरी आपने खुद से बनानी है। हिंट इज अमित एंड विमल were friends. On a holiday they went walking into a forest. Enjoying the beauty of nature, suddenly they saw a bear coming at them.
सो इसकी स्टोरी अब आगे की आप बनाओगे. सो लेट्स सी. Amit and Bimal were friends. One day they went walking into a forest, enjoying the beauty of nature. Suddenly they saw a bear coming at them. They became frightened. Amit, who knew how to climb trees very well, ran up to a tree and climbed up quickly. He didn't think of Bimal. Bimal had no idea how to climb a tree. He was at a loss. He didn't know what to do. Bimal thought for a second. Heard animals don't eat the dead, so he fell to the ground and held his breath. He lay still as if dead. The bear sniffed him and thought he was dead, so it went on its way. Amit asked Bimal, "What did the bear whisper into your ears?" Bimal replied, "The bear asked me to keep away from the friends like you," and went on his way. सो अमित और बिमल दोनों फ्रेंड्स थे. तो एक दिन वो जंगल से जा रहे थे. तभी उन्होंने एक बैर को, भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा. दोनों उससे डर गए. तो जो अमित था उसको ट्री के ऊपर क्लाइंब करना, चढ़ना आता था, तो वो फटाक से जो ट्री था उसके ऊपर चढ़ गया. बट बिमल को ट्री के ऊपर चढ़ना नहीं आता था. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसने सुना था कि जो एनिमल्स होते हैं वो डेड लोगों को नहीं खाते. तो उसने एक्टिंग की कि वो डेड बॉडी है. ठीक है. तो वो डेड बॉडी की तरह उसी जंगल में वहाँ पे लेट गया. तो जब बैर उसके पास गया तो उसने उसको सूंघा और स्निफ करने के बाद उसको भी लगा कि ये तो डेड बॉडी है. तो वो उसको सूंघ के बाद में चला गया. तो जब अमित नीचे आया पेड़ से तो उसने बिमल से पूछा कि बैर ने तुम्हारे कान में क्या बोला था. तो बिमल ने रिप्लाई दिया कि बैर ने मुझसे बोला था कि तुम्हारे जैसे सेल्फिश फ्रेंड से दूर रहो. तो उसके बाद बिमल भी वहाँ से चला गया. सो नाउ राइट स्टोरीज फॉर द फॉलोइंग आउटलाइंस, मॉरल्स, हिंट्स एंड पिक्चर्स. इसमें से फर्स्ट 2 हमने कर लिए हैं. सो द आउटलाइन इज अ टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स हैव सेंट एन ऑरेंज टू स्पेस. The orange reaches space. The spacecraft lands on alien planet outside of solar system. Somebody opens the door of the spacecraft, peels and eats half the orange. The spacecraft comes back to Earth with half-eaten orange. So let's read the story about this. Once upon a time, Indian scientists were experimenting on a spacecraft. They decided to send this spacecraft in space. One of the scientists said, "We should send an orange with spacecraft in the space." All the other scientists nodded in agreement. Next day, they placed the orange in the spacecraft and launched it. When the spacecraft came back to the Earth, all the scientists exclaimed with wonder. One of them said, "I am speechless." It seemed like the spacecraft had landed on an alien planet outside of the solar system. This is because the orange was half eaten. It looked like someone must have opened the doors of the spacecraft and have eaten the orange. All the scientists were simply amazed because that planet on which their spacecraft have landed was yet to be discovered by the scientists. सो एक बार की बात है कि इंडियन साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे. तो उन्होंने सोचा, उनमें से एक साइंटिस्ट ने बोला कि हम ऑरेंज को उसके अंदर स्पेसक्राफ्ट में रख के स्पेस में भेज देंगे. तो उन्होंने नेक्स्ट दिन ऐसा ही किया. उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया और उसमें ऑरेंज को वैसे ही रख दिया और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया. तो जब उनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाके वापस आया ज़मीन पे, अर्थ के ऊपर, तो वो हैरान हो गए क्योंकि जो ऑरेंज उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में रखा था वो हाफ ईटन था, आधा खाया हुआ था. तो ऐसा लग रहा था उसको देख के कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो किसी एलियन प्लेनेट के ऊपर रुका होगा और किसी एलियन ने उसका डोर ओपन करके वहाँ से ऑरेंज को निकाला होगा और उसको छील के उसको खा के वापस उसमें रख दिया होगा. तो इसी वजह से सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए क्योंकि जो एलियन प्लेनेट पे उनका स्पेसक्राफ्ट जाके आया शायद उन्होंने अभी तक उसकी डिस्कवरी तक नहीं की थी. So our next story is based on a moral. There is no shortcut to success. There was a man who lived with his parents. He was not hardworking. He was willing to do a well-paying job, so he refused all small jobs. Everyone around him told him to start with a small job, but he just ignored everyone's advice.
One day, his parents decided to teach him a lesson. They left him alone and went away. They also left a note for him in which it was written that they will come back when he will begin to work. His parents left some money for him, but that money lasted for only a week. When he lost all the money, he realized how much important it is to work and earn money. Then he decided to do a job. After some years, he became a big businessman. His parents came back to him. On that day, he learned that no one can gain anything without working hard. सो देयर वॉज अ मैन जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और वो हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको सभी बोलते थे, एडवाइस करते थे कि तुम किसी स्मॉल जॉब से स्टार्ट करो, उसके बाद तुम किसी बड़ी जॉब पे भी लग सकते हो, बट वो सभी की इस बात को, एडवाइस को इग्नोर कर देता था। तो एक दिन उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम इसको एक पार्ट बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक नोट वहाँ पे छोड़ दिया और खुद वहाँ से चले गए, उसको अकेला छोड़ के। उस नोट पे लिखा था कि हम तभी वापस आएंगे जब तुम्हारे पास जॉब होगी। तो उसके पेरेंट्स ने उस नोट के साथ थोड़े से पैसे भी उसके लिए रखे, पर वो पैसे सिर्फ एक वीक तक ही चले। उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि मनी कमाना, पैसे कमाना कितना मुश्किल है और कैसे उसको कितना इम्पॉर्टेंट भी है कि पैसे वो कमाए। तो उसने डिसाइड की कि मैं एक जॉब करूँगा और थोड़े से टाइम के बाद वो एक बिग बिजनेसमैन बन गया। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी उसके पास वापस आ गए और उस दिन उसने सीखा था कि बिना हार्डवर्क के कोई भी कुछ भी गेन नहीं कर सकता। सो ये मॉरल हमने लिखा था। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपने ये सारी स्टोरीज़ को प्रैक्टिस करना है और एक बार अच्छे से इनको रीड करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।